عظیم ملت عظیم پرچم عطائے رب کریم پرچم یوم پاکستان آج جوش و جذبے اور یوم یکجہتی کے ساتھ منایا جائے گا۔ جنوبی پنجاب بھر میں تقریبات اور سیمینارز منعقد کیے جائیں گے۔ اپنی جانیں دے کر مستقبل محفوظ بنانے والوں کو پوری قوم کو سلام۔ عظیم ملت عظیم پرچم عطائے رب کریم پرچم یوم پاکستان آج جوش و جذبے اور یوم یکجہتی کے ساتھ منایا جائے گا۔ جنوبی پنجاب بھر میں تقریبات اور سیمینارز منعقد کی جائیں گے۔ اپنی جانیں دے کر مستقبل محفوظ بنانے والوں کو پوری قوم کو سلام۔ آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب اور پاکستان آج جوش و جذبے اور قومی یکجہتی کے ساتھ بنایا جائے گا۔ جنوبی پنجاب بھر میں تقریبات اور سیمینارز منعقد کیے جائیں گے۔ اپنی جانیں دے کر اور مستقبل محفوظ بنانے والوں کو پوری قوم کو سلام۔ یوم پاکستان آج جوش و جذبے اور یوم یکجہتی کے ساتھ منایا جائے گا۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان، پہلا روزہ آج ہوگا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے ایسا اعلان کر دیا گیا ہے۔ خواتین گھروں میں بھی سحری کی تیاریاں شروع کر دی۔ روحی کی جانب سے اہلیان ایمان کو ماہ سیام مبارک۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان، پہلا روزہ آج ہوگا۔ خواتین گھروں میں ابھی سے سحری کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ روحی کی جانب سے اہلیان ایمان کو ماہ سیام مبارک۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات ملتوی کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب میں انتخابات 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ پنجاب میں انتخابات کا شیڈول دوبارہ جاری کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کرنے کا باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے اہم اور بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات ملتوی کر دیے۔ پنجاب میں انتخابات 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ پنجاب میں انتخابات کا شیڈول دوبارہ جاری کر دیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کرنے کا باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ ملتان انتظامیہ کے دعوے دھرے رہ گئے، عوام کے لیے سستے آٹے کا حصول ممکن نہ ہو سکا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر خواتین کی لمبی لائنیں، آٹا سیل پوائنٹس بھی بند رہے۔ شہری دن بھر خواری کے بعد خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں سہیرہ طارق۔ رمضان کی آمد ملتانیوں کے لیے سستے آٹے کا حصول انتہائی مشکل ہو گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی خریداری کے لیے لمبی لائنیں، خواتین خوار ہونے لگیں۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا آٹا دستیاب ہی نہیں۔ آٹے کے لیے کھڑے ہیں، کل ادھر پھر کے آ گئے ہیں، کلمہ چوک والے پاس نہیں ملا۔ ہم تو غریب بندے، ہمارے تو ادھر بہت ہی، میں تو خود بیوہ ہوں، تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ایک بیٹا وہ بھی ابھی کام سیکھ رہا ہے۔ دوسری جانب سستے آٹے کے پوائنٹس بھی آج بند پڑے رہے۔ آٹا خریدنے کے لیے آنے والوں کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز ہونے والی بارش کے باعث آٹا پوائنٹس بند ہیں۔ آج آٹا بند ہے، کسی کو مل رہا ہے، کسی کو نہیں مل رہا، کئی اہل ہیں کئی نہیں اہل، ٹھیک ہے نا۔ ہم مزدور لوگ ہیں، ہم مزدور لوگ کہاں جائیں، ٹھیک ہے نا۔ ہماری مزدوری کے لیے ہم 500 کماتے ہیں، 2000 روپے گھر کا خرچہ ہے۔ 3 دن سے آ رہے ہیں، ہمیں آٹا نہیں مل رہا۔ پہلے آئے تھے، انہوں نے کہہ دیا 7 دن بعد آنا آٹا ملے۔ آپ تو اہل بھی ہوئے پڑا ہے، اندراج ہمارا ہوئے پڑا، لیکن آٹا نہیں دے رہے پھر بھی۔ پریشان حال شہریوں نے ارباب اختیار سے سیل پوائنٹس اور یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی دستیابی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین ہارون کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ بہاولپور انتظامیہ آٹا سینٹر پر انتظامات میں بہتری لانے میں کامیاب۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور کا کہنا تھا کہ ایک شخص کے آٹے لینے کے بعد دوسرے شناختی کارڈ پر اس گھرانے کے کسی فرد کو آٹا نہیں ملے گا۔ اگر یہ بات سب کو سمجھ آ جائے تو رش بہت کم ہو جائے گا۔ مزید دیکھیے محمود ظہیر کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر مفت آٹے کی تقسیم کا سلسلہ جاری۔ بہاولپور انتظامیہ آٹا سینٹر پر انتظامات میں بہتری لانے میں کامیاب۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور کا کہنا تھا کہ دن بدن آٹے کی تقسیم کے سسٹم میں بہتری آ رہی ہے۔ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ چیزیں آپ خود بھی آبزرو کر رہے ہوں گے، بہت زیادہ امپروو ہو رہی ہیں۔ ہم نے کاؤنٹر زیادہ کر دیے ہیں، جو موبائل کوالٹی والے نہیں تھے وہ ریپلیس کروا دیے ہیں۔ آج کے دن تک پورے پنجاب میں کوئی 21 سے 22 لاکھ تھیلا جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم 1/5 جو ہے وہ آلریڈی اچیو کر چکے ہیں پہلے ایک ہفتے میں۔
डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर का मजीद कहना था कि एक शख्स के आटे के लेने के बाद दूसरे शनाख्ती कार्ड पर उस घराने के किसी फर्द को आटा नहीं मिलेगा। अगर ये बात सबको समझ आ जाए तो रश बहुत कम हो जाएगा। हम लोगों की फैसिलिटेशन के लिए काउंटर्स भी ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्लॉयमेंट है उसको भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। बुज़ुर्गों और जो हमारे माजूर अफराद हैं उनके लिए काउंटर्स भी अलग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये आज और कल का दिन है, हम कंफर्टेबल जोन में आ जाए। देखें, ये थोड़ा सा एजुकेशन का आई बिलीव है इशू। ये चूँकि कंप्यूटराइज डाटा है, इसको कोई भी चीट नहीं कर सकता। हम यहाँ पे अनाउंसमेंट्स भी करवाते रहते हैं कि जो बंदा कल आटा ले गया वो अब 8 दिनों बाद आए। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने आटा सेंटर्स पर काउंटर्स की तादाद बढ़ा दी। अब धक्कम पेल की कोई शिकायत मौसूल नहीं हो रही। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। पंजाब में इश्तिहारी मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड की एंट्री पुलिस रिकॉर्ड में ना होने का इंकशाफ। 17 साल की उम्र के नौजवानों के शनाख्ती कार्ड ना होने पर पुलिस को मुश्किलात। शनाख्ती कार्ड के अदम दस्याबी की सूरत में SOPs जारी। मुल्जिम 18 साल से जायद उम्र का है तो शनाख्ती कार्ड नंबर नादरा से मालूम किया जाए। मुरासला जारी कर दिया गया है और मुरासले में लिखा गया, अगर मुल्जिम 18 साल से कम उम्र का है तो अब बे फार्म के लिए मुतहरिक किया जाए। तफ्तीशी अफसरान दुरुस्त शनाख्ती कार्ड का इंदराज रिकॉर्ड में करें। सिस्टम में शनाख्ती कार्ड नंबर पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। DIG इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पंजाब ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को मुरासला भिजवा दिया है। अब आपको बताएं, हज ऑपरेशन 2023 के हवाले से वन विंडो सहूलत के तहत मुकम्मल करने का फैसला कर लिया गया है। हाजी कैंप में एयर कंडीशंस मार्की लगाई जाएंगी। हज डायरेक्टोरेट के अफसरान का बैंकों एयरलाइंस के नुमाइंदों के साथ इजलास। आज़मीन हज की रवानगी के मौका पर बैंक और एयरलाइंस एयर कंडीशन मार्की में अपने काउंटर लगाए जाएंगे। आज़मीन हज को टिकट, पासपोर्ट और दीगर सहूलियात एक ही छत तले मुहैया की जाएंगी। बैंकों को हाजियों की जरूरत के मुताबिक सऊदी रियाल का इंतजाम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मुल्तान में बाराने रहमत गंदम के काश्तकारों के लिए बन गई जहमत। जालाबारी से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। खेतों में गिरे सिट्टों को देखकर काश्तकार परेशान, हुकूमत से मदद की अपील कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। जनूबी पंजाब के दीगर अजला की तरह शहर ओलिया में भी बादल जमकर बरसे। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश और यालाबारी गंदम के काश्तकारों के लिए डरावना ख्वाब बन गई। यालाबारी और बारिश से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इन दिनों फसल में दाने दूधिया हालत में थे। परेशान हाल काश्तकारों का कहना था कि मौसमी सूरत हाल ने फसल को बर्बाद कर दिया। इस साल गंदम की पैदावार शदीद मुतासर होगी। काफ़ी कणकां ढह गई, दाने नुकसान होया यालाबारी की वजह तो डाना सी डाना ते कणक दे ढाण नाल बड़ा नुकसान है डाना साडा डाना सी। हमारी जो फसल कच्ची थी ना वो सारी गिर चुकी है। जो पक्की हालत में वो थोड़ा बहुत नुकसान कम हुआ है। जो कच्ची थी तो उसका सारा ही नुकसान है। तकरीबन हमारी सारी की सारी गंदम मुतासर हुई है। गवर्नमेंट को पूरे साल तावन करन जी। माहिरीन ज़राअत का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से जनूबी पंजाब में 90 लाख मैट्रिक टन गंदम का पैदावारी हदफ भी नामुमकिन हो गया। अच्छी बात यह है कि इस दफ़ा जो लोग काश्तकारों ने महकमा ज़राअत की रहनुमाई में आके जो अर्ली काश्त है यानी कि नवंबर के पहले हफ्ते में वो 90% से ज़्यादा जो टारगेट है वो हमने हासिल किया था। इसी वजह से ये जो बारिशें और यालाबारी हो रही है इससे जो हमारी अगेती काश्त है उसको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पछेती हमारी काश्त है उसको थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर है। परेशानी से 2-4 काश्तकारों ने हुकूमत से मुश्किल वक्त में काश्तकारों की फौरी मदद करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, रोही न्यूज़, मुल्तान। बहावलपुर के किसान बिजली बिलों में भारी जुर्मानों के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मैपको सर्कल ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि बिजली बिलों में लगाए गए बिला वजह जुर्माने माफ करके वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक यूनिट्स चार्ज किए जाएं। महमूद जहीर की रिपोर्ट में देखिए। बहावलपुर के किसानों का सबर जवाब दे गया। सैकड़ों किसानों ने बिजली बिलों में भारी जुर्मानों के खिलाफ मैपको सर्कल ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि मैपको ऑफिस काश्तकारों से इंसाफ नहीं करता। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਬਚਾ। ਹੀ ਟਾਈਮ ਗੰਦਮ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ करते ਇਹ महीने ਦਾ ਸਾਕੋ हुकूमत मिहरबानी करते रिलीफ देवे, साढ़े को बिल ना गिने। मुजाहिरीन की जानिब से मैपको के खिलाफ शदीद नाराबाजी की गई। किसानों ने जुर्माने माफ और वजीर आजम की हदायत के मुताबिक बिजली यूनिट्स चार्ज करने की अपील कर दी। कहा, अगर मैपको वजीर आजम का हुक्म नहीं मानता तो और किसी की क्या सुनेगा। जो वजीर आजम साहब ने ऐलान किया है 13 रुपए यूनिट हम देने के लिए तैयार है और और बिलें खत्म की जाए।
किसानों के धरने के दौरान ट्रैफिक ब्लॉक और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने आकर सूरत हाल कंट्रोल कर ली। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। अब आपको बताएं, वाइस चेयरमैन तहरीके इंसाफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम लगा दिया। कहा, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का एजेंडा इलेक्शन से फरार, तहरीके इंसाफ को कलअदम करार देकर इमरान खान पर पाबंदी लगाना है। जुनेद अनवर की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में अपनी रिहाइश गाह पर गुफ्तगू करते हुए वाइस चेयरमैन तहरीके इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हुकूमत इलेक्शन पर बातचीत करना चाहती है तो एजेंडा दे। शहबाज शरीफ को इसहाक डार के एटमी प्रोग्राम बारे बयान की वजाहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो तो अपना CV लेकर दुनिया भर में घूम रहे हैं। मूसा गिलानी को कहना चाहता हूँ, बेटा अब काबू रहना, मैदान से भागना नहीं। ये उनका फैसला है, लेकिन काबू रहना, अब काबू रहना, मुल्तान का मीडिया गवाह है। अब मैदान से भागना नहीं है, हार जीत होती रहती है, मैदान से भागना नहीं है। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि 25 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर तारीखी इज्तिमा होने जा रहा है। जनूबी पंजाब के अवाम भरपूर हिस्सा लेंगे। उनका मजीद कहना था कि इंतकामी कार्रवाइयों का मकसद दबाव डालना है, लेकिन जमाना बदल गया है। आज कौमी असेंबली और सेनेट का एक मुश्तरका इजलास बुलाया गया है। इजलास का एजेंडा क्या है? कोई आम आदमी की फिक्र नहीं है, कोई मईशत की जो बदहाली है उसको दुरुस्त करने का कोई मंसूबा सामने दिखाई नहीं दे रहा। शाह महमूद कुरैशी का यह भी कहना था कि सऊदीया और ईरान के दरमियान सुलह अच्छी बात है, इसके खित्ते पर मुस्बत असरात पड़ेंगे। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। कस्टम कलेक्टर मोहम्मद ताहिर ने कस्टम हाउस मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था, एयरपोर्ट पर एक्सपोर्ट में कोई रुकावट नहीं। रवा माली साल में ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग में मुलविस 43 गाड़ियों को पकड़ा। 6,32,000 लीटर स्मगलर पेट्रोल और डीजल पकड़ा गया है। 16 करोड़ रुपए मालियत का स्मगल पेट्रोल और डीजल पकड़ा गया। आपको बता रहे हैं, कस्टम कलेक्टर मोहम्मद ताहिर ने कस्टम हाउस मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। आपको गोशगुजार करता हूं कि हमने अब तक 43 व्हीकल्स ऑयल की पकड़ी हैं। इसके मुकाबले में पिछले साल जो है वो मार्च तक 7 व्हीकल पकड़ी गई थी। तो पिछले साल के 7 के मुकाबले में हमने 43 व्हीकल्स को न सिर्फ पकड़ा है बल्कि उनको डिटेन किया है और उनको सीज किया है। उनमें से बेशतर व्हीकल हमारे पास कब्जे में मौजूद हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई बैंक गारंटी पे कोई 1 या 2 व्हीकल ऐसी होंगी शायद जो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उनको बैंक गारंटी पे रिलीज़ किया है, उसका ऑर्डर दिया है, तो उसके ख़िलाफ़ हम अपील में गए हुए हैं। और जो क्वांटिटी है वो 6,32,000 लीटर है जो हमने पकड़ी है। उसके मुकाबले में जो पिछले साल थी वो सिर्फ 66,000 लीटर पकड़ी गई थी। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इस साल 6,32,000 लीटर हमने पकड़ी है और पिछले साल जो है वो 66,000 लीटर थी सिर्फ। और इसकी वैल्यू का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये मौजूदा साल जो हमने पकड़ी है ये 159.5 मिलियन रुपए है, तकरीबन 16 करोड़ के करीब बनती है। और पिछले साल जो इसकी वैल्यू थी वो सिर्फ 11.5 मिलियन थी। तो इस साल हमने उससे तकरीबन लगता यूँ है कि 10 टाइम क्वांटिटी भी और वैल्यू में भी हमारी जो एफर्ट्स मटेरियलाइज हुई हैं उस लिया में अंजुमन ताजरान अड्डा हाफिजाबाद के नौमुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफबरदारी। सदर अंजुमन ताजरान 12वीं ग्रुप वाहिद बख्श बारहवीं ने नौमुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। मज़ीद देखिए जाहिर सरफराज की इस रिपोर्ट में। अंजुमन ताजरान अड्डा हाफिजाबाद के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीबी हलफबरदारी का इनेकाद किया गया। सदर अंजुमन ताजरान 12वीं ग्रुप वाहिद बख्श बारहवीं समेत लिया से दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। 9 मुंतखब सदर अब्दुल गफूर समेत दीगर ओहदेदारान ने ओहदे का हलफ उठाया। मैं तमाम फैसलों में अदल, अखलास और हक की पासदारी करूंगा। मैं किसी भी सूरत में समझौता, मुनाफा के असूल या दूसरों के नुकसान की पासदारी नहीं करूंगा। मैं इस अहद को पूरा ईमानदारी
और जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। वैद बज बारवी का कहना था कि अंजुमन ताजरान ताजर बरादरी के हकूक की जामिन है। ये लोग अगर मार साहब का हाथ मजबूत करेंगे तो मार साहब जिस जज्बे के साथ आए हैं तो इंशाअल्लाह ताला लोगों के मसाइल भी हल होंगे और ये अंजुमन जो है कंटिन्यू भी रहेगी और ये मसाइल भी हल करेंगे इंशाअल्लाह, हम इनके साथ हैं। नौ मुंतखब सदर अब्दुल गफूर और साबिक सदर साजिद असलम का कहना था कि ताजरों के हकूक का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ताजर बिरादरी दे नाल खड़ा मैं कामयाब कीते ने इंशाअल्लाह ताला इन्हां दे हर दर्द विच मैं शरीक होसां। जिस वक्त सडे सन राती 12-1 बजे तक 2 बजे 4 बजे मैं इन्हां दा हाजिर होसां। मैं तो एक रिक्वेस्ट करे सां जेड़े सारे नौ मुंतखब सदर मार अब्दुल गफूर चंद्रड़ साहब हैं कि वो जितना थी सके ताजर बिरादरी दे नाल खड़ के उन्हां दे मसाइल हल करन। नौ मुंतखब ओहदेदारान का कहना था कि इलेक्शन मुहिम में जो वादे किए वो पूरे करेंगे। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही लैया। मुल्तान के वकला और शहरियों के लिए खुशखबरी। मुल्तान कचहरी में गाड़ियां खड़े करने के लिए पार्किंग प्लाजा की तामीर का आगाज। डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर उमर जहांगीर ने डिस्ट्रिक्ट बार ओहदेदारान के हमरा पार्किंग प्लाजा का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात जानते हैं माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान के वकला और शहरियों के लिए अच्छी खबर, जिला कचहरी में पार्किंग प्लाजा की तामीर का आगाज। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उमर जहांगीर और डिस्ट्रिक्ट बार ओहदेदारान ने कचहरी में पार्किंग प्लाजा की तामीर का इफ्तिताह कर दिया। ये मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर का इस मौके पर कहना था कि डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है जिसमें पार्किंग प्लाजा तामीर हो रहा है। इससे कचहरी चौक से गुजरने वाले शहरियों और वकला की मुश्किलात कम होगी। पंजाब की तीसरी सबसे बड़ी बार है और इनकी मेंबरशिप के साथ साथ इनके जो तमाम वकला साहबान हैं बहुत एक्टिव हैं अपने बार के मामलात में। तो ये इनकी बहुत बड़ी काविश है कि जो इन्होंने ये पार्किंग प्लाजा अप्रूव करवाया है जिसकी वजह से पूरे शहर की ट्रैफिक का मसला हल होगा। कचहरी जैसे कि आप जानते हैं शहर के बिल्कुल ऐन वस्त में मौजूद है और तमाम शहर को यहाँ से गुजरना होता है। तो जब ये पार्किंग प्लाजा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला तो जो ट्रैफिक के मसाइल हैं कचहरी के बाहर वो दूर होंगे। सदर डिस्ट्रिक्ट बार ने अपने खतान में कहा कि पार्किंग प्लाजा न होने की वजह से चौक कचहरी पर गाड़ियां खड़ी करना पड़ती थीं, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेजेस और दफातर में जाने वाले शहरियों को परेशानी का सामना था। इससे शहर का बहुत बड़ा मसला खत्म होगा। पार्किंग प्लाजा हम अपने इलेक्शन के कैंपेन में भी इसका वादा करते हैं लोगों से और जैसे ही हमने चार्ज संभाला पहले दिन से हमने ये कोशिश की कि इसको फौरी तौर पर स्टार्ट किया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका बाकायदा इफ्तिताह करके एक्सकवेशन स्टार्ट करवा रहे हैं और इंशाल्लाह वैसे तो मंसूबा ये 3 साल का है लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ये 1.5 से 2 साल के अंदर हम इसे कंप्लीट कराएं। डिस्ट्रिक्ट बार के नायब सदर महार तारिक सियाल, जनरल सेक्रेटरी सैयद अली अल्ताफ गिलानी, ज्वाइंट सेक्रेटरी रुबीना राना, लाइब्रेरी सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी समेत एग्जीक्यूटिव मेंबरान भी इस मौके पर मौजूद थे। कैमरामैन हारून रमजान के साथ महार इमरान नवाज, रोही, मुल्तान।